1 minute. Yes, okay. So this is our step number 1, p is equal to 2 pi by omega, and the Laplace transform of the periodic function is 1 upon 1 minus e raised to minus sp 0 to p f of t e raised to minus st dt. Now replace the value of p here. So 1 upon 1 minus e raised to minus as it is, and p is our 2 pi by omega, so 2 pi by omega. Okay, and 0 to 2 pi by omega f of t cannot substitute here, e raised to minus st dt. Okay, say this is your equation number 1. So our this is the step number 2. Now step number 3, what is your step number 3? Find out the integration. Okay, so now integration of 0 to 2 pi by omega f of t e raised to minus st dt is equal to how many partition of the function? Two partition. Two partition. Okay, so we have two partition, so we can write down here two integration, integration 1, integration 2. So first we start with the 0, so 0 to pi by omega, yes or no? Yes, sir. And pi by omega to 2 pi by omega. Okay, now tell me what is the value of 0 to pi by 2, sorry, what is the value of f of t in 0 to pi by omega? Sin omega t. Sine omega t. So sine omega t into e raised to minus st dt plus pi by omega to 2 pi by omega. So it will be 0. So 0 into e raised to minus st dt. So the second integration will be 0. Yes or no? Yes, sir. So the value of second integration is 0. Now we go for the first integration. So first integration is my 0 to pi by omega e raised to minus st sine omega t dt. Okay. Now is there any formula for the integration? UV rule. UV rule. If you do UV rule, then you cannot find your answer until or up to your older age, है ना? Sir, that e raised to minus t into sin t, that formula. आप बहुत ओल्ड बन जाएंगे ना तो पर भी इसका इंटीग्रेशन यूवी रूल से नहीं फाइंड कर पाएंगे. ओके, तो इसका यूवी रूल से फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ई रेज टू ए टी इंटू साइन बी टी डी टी. वॉट इज दैट? वॉट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? ई रेज टू ए डिवाइड बाई बी? नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं होगा. इसके लिए सीधा फॉर्मूला था, फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, एंड आई टोल्ड यू these two formulas are very very important. E raised to at upon a square b square into comma a sin bt minus b cos Very good, dt plus very c. good, very good. Okay, e raised to at upon a square plus b square, then bracket a sin bt minus b cos bt. Yes or no everybody? हमने मैंने बोला था ना, and this will also helpful in this Fourier series. बोला था कि नहीं? Yes, sir. Okay, now tell me what is our a and what is our b after comparing both the integration. A is minus. A is A is minus s. minus s. Yes, a is my B minus. omega. Yes, a is equal to B minus omega. and b is equal to omega. Very good. Okay, so now replace the value of a and b in this integration. So we have e raised to minus st upon minus s whole square plus omega square bracket. A means मेरा minus s है, so minus s into sin omega t minus omega into cos omega t, and the value of the integration or our limits are 0 to pi by omega. Is it okay everybody? Yes, sir. Now first we substitute pi by omega in place of t. So e raised to
minus s pi by omega divided by s square plus omega square. Okay, then here minus s into sine omega into pi by omega minus omega into cos omega pi by omega. What I do here? I replace t equal to pi by omega. Okay, first. Now I go for the second limit. So minus is there. Now e raised to 0 divided by s square plus omega, and here we have minus s into sine 0 minus omega into cos 0. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So now you can see here e raised to minus s pi by omega into, okay, now tell me four values. Number one, sine pi, cos pi, sine Hello, 0. sir. Yes? सर यहाँ लिमिट तो पाई बाय ओमेगा से 2 पाई बाय ओमेगा है ना? नहीं नहीं, हाँ वो है, लेकिन No, sir, सेकंड वो तो पार्ट तो zero हो जीरो हो गया गया ना. सेकंड पार्ट विल बी जीरो. वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली फर्स्ट पार्ट. ओके, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Okay, then okay. Now tell me what is the value of sine pi? 0. 0. 0. Okay. Yes. Cos pi? -1. 1 या minus 1? -1. Minus 1. minus 1, Sine 0 0. 0, and cos 0 1. 1. Okay. So you can see here we use these four values. Oh. Yes, Jaideep. Ah. Okay. Jaideep, any problem? No, sir. Okay, now here you can see that omega will be cancel out because both are in the angle. Okay, outside नहीं है, angle में है तो we can do it. Okay, तो यहाँ पे angle में है तो हमने omega cancel कर दिया. तो अगर आप देखेंगे तो this is nothing but sin pi, this is nothing but cos pi, sin 0 cos 0. We substitute four values here, so we have minus s into 0. Okay, so minus s into 0 minus omega into minus 1, and then minus e raised to 0 means 1, so 1 upon s square plus omega square minus s into 0 minus omega into 1. Now if you solve all this step, ये ना, हाँ वो कर रहे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, वो तो जो था वही लिखा है हमने, पता है ना. ओके, आगे देखो ये रहा ना, यहाँ पे बीच में माइनस था तो माइनस ही रखा हुआ है. ओके, हाँ यस यस. सर यहाँ पे माइनस ये e रेस टू माइनस s पाई बाय ओमेगा होगा तो अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हाँ आएगा ना? s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा ना. यस, वी लेफ्ट इट. ओके, फॉरगॉट इट. ओके, सो थैंक यू. सो ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं किया है ना हमने. सो देखो यहाँ पे क्या होगा, s पाई बाय ओमेगा into we have minus minus plus omega, so into omega divided by s square plus omega square minus second thing, so यहाँ पे minus minus plus, so यहाँ पे plus omega divided by s square plus omega, and if you put omega outside then we have e raised to minus s pi by omega, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना. सो ई रेज टू माइनस एस Yes, स्क्वायर sir. बाय ओमेगा Yes. प्लस 1 हो जाएगा. 1. यस, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड. ओके, सो ये हो गया हमारा. चलो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना बाकी बचा Yes. सिर्फ, है ना. Yes, sir. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 one can find what we have, Laplace transform of f of t is equal to 1 upon 1 minus e raised to minus s 2 pi by omega into
this one, that means omega upon s square plus omega square, and here we have e raised to minus s pi by omega plus 1. Okay, so can we factorize this one? जो डिनोमिनेटर में Yes, उसको sir. फैक्टराइज कर सकते हैं ना, जैसे हमने आगे एग्जांपल्स में किया था ऐसे ही. सो ओमेगा यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस ई रेज टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा सिंपली. ओके, डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज. ओके, एंड I can write this expression into two factors. So 1 minus e raised to minus s pi by omega into 1 plus e raised to minus s pi by omega. Okay, everybody? Yes or no? Yes, How sir. this happen? Yes, sir. X square plus, sorry, x square minus y square. So x minus y, x plus y. Okay, from this we can find these two factors. Now we can cancel out one factor. Is it okay? Yes or no? Yes, sir. Okay, Yes, so you sir. can Yes, s sir. omega upon s square plus omega square 1 minus e raised to minus s pi by omega, that is our required Laplace transform. Okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, any doubt, any question in this example or in this method? No, sir. Okay, you have to first identify the periodic function with the period. If you go with that, then you can easily find your Laplace transform. Means अगर आपको पता चल गया है कि इसमें यही मेथड करना है, then you can do. Okay, अगर नहीं पता चला कि इसमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है, then you cannot do anything. Okay, so now is there any doubt, any question up to here? Anybody? No, sir. No doubt, sir. Okay, done. Then we go for the next topic. Next topic is method of partial fraction. You learn this topic in the primary. Okay, primary में आपने किया था, लेकिन 2 तक गए थे आप, केस 1 एंड केस 2. ओके, पार्शियल फ्रैक्शन आता था ना इंटीग्रेशन करने के लिए, और आगे भी बचपन में भी किया है. तो व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन कब कर सकते हैं? एनीबडी? Is there any condition to do the partial fraction? Any condition? Anybody? या forgot? भूल गए? मुझे तो लग रहा है भूल गए, है ना? यहाँ बैठे हो तो बोल रहे हैं भूल गए. ऑनलाइन में किसी को कुछ बोलना है, गैस वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मनन, ऋषि, व्रज, ओम, सर भूल गए. भूल गए. ओके ओके, नो भूल गए. चलो याद करते, कोई बात नहीं. चलो यहाँ पे देखो, पी क्यू, पी ऑफ एक्स. ओके, पी बाई क्यू लेना है हमको. सो पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स. ओके, ऐसा पहले तो फॉर्म होना चाहिए, देन तब जाके हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे. अब इसमें क्या है, एक कंडीशन है कि डिग्री ऑफ q of x is greater than the degree of p of x. Means क्या हुआ? If you understand or if you find the meaning of this, then the meaning is if the degree of the denominator is greater than the degree of the numerator, then you can do the partial fraction. कैसे? मैं आपको बताता हूँ. For example, if you go with the example, then if you have the x upon x square minus 4. So can we do the partial fraction for this? Yes. Yes, sir. हाँ, क्यों? Yes, क्योंकि sir. डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? 2 है, एंड न्यूमरेटर का 1 है. That means 2 is greater than 1, so we can do the partial fraction. But if you have like this, x cube upon x plus, x square minus x square minus 1, then can we find the partial fraction? No, sir. No, because already the higher power in the numerator. Okay, so we cannot find the partial fraction. So this is the condition to find the partial fraction. Is it okay, everybody?
Yes, sir. Yes, sir. इक्वल डिग्री के लिए फॉर एग्जाम्पल Yes. चलो ऊपर मैंने एक्स स्क्वायर किया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 किया, कैन वी डू दी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर दिस? No, sir. नो, क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड द रीअरेंजमेंट. इफ वी कैन फाइंड द रीअरेंजमेंट देन वी कैन डू द पार्शियल फ्रैक्शन, अदरवाइज वी कैन नॉट डू. ओके एवरीबॉडी, है ना? यहाँ पे Yes, sir. पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. देखो, है ना, उसको रिडक्शन में ले जाना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, -4 + 4 करके वहाँ 0 किया तो ये हो गया. अब इससे क्या करेंगे हम, 1/1 हो गया ये तो, है ना, प्लस 4/x² - 4. नाउ यू कैन डू द पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, फॉर सेम डिग्री आप ऐसा लगा सकते हो. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. Okay, and also if you convert this form in second example then you can also do the partial fraction, but I think it is not possible in second example. Yes or no? Rearrangement is not possible in second example ना, है ना? इसमें rearrangement possible नहीं है ना स्टूडेंट? Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay, okay. So this is the condition for the partial fraction. Okay. अब टाइप केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ. केस 1, ओके, केस 2, केस 3 एंड केस 4 सीधा ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, अब केस 1 क्या है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. ओके, लीनियर मीन्स जिसका ऑर्डर 1 है, मीन्स डिग्री 1 है. तो इसमें कैसे फॉर्म आएगा, देखो आपका इस टाइप का फॉर्म होगा कि p of x डिवाइड बाय x माइनस a, x माइनस b, है ना, x माइनस c आफ्टर फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर. तो इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b plus c/x minus c. So this is the way to find the partial fraction. Understand everybody case 1? Yes, sir. Okay. Yes. Now case 2 is for the repeated. Okay. So we write down here repeated linear factor. Okay. Done. Non-repeated linear factor यहाँ पे ऐसा होगा. So which type of form is for this? So p of x divided by x minus a whole square, okay, and into x minus b and into x minus c whole square है. So यहाँ पे क्या हुआ, लीनियर है लेकिन उसका मोर देन 1 पावर हो गया, है ना. So that is the case number 2. तो उसमें क्या करेंगे, तो look at everybody here. देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सो a अपॉन फर्स्ट टाइम x माइनस a प्लस b अपॉन सेकंड टाइम x माइनस a होल स्क्वायर. तो जितना पावर है वहां तक आपको जाना है. मीन्स अगर थर्ड होता x माइनस a क्यूब तो क्या करते हम, प्लस c करके x माइनस a क्यूब तक जाते हैं. इज इट ओके एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो x माइनस a and b are constant, we should find it. Okay, we find, हम डिटरमाइन करेंगे उसको. कांस्टेंट है, कांस्टेंट. ओके Okay, sir. ओके. नाउ टेल मी x माइनस b इज लीनियर. सो Yes, sir. हाँ, तो कौन सा केस अप्लाई करेंगे, 1 और 2? First one, One. c upon x minus b. 1. ओके, सो सीधा हम लिखेंगे c अपॉन x माइनस b क्योंकि 1 टाइम ही है. ओके, प्लस अब x माइनस सी के लिए 2 टाइम्स है. चलो उसको भी मैं क्यूब कर देता हूँ, चलो, है ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चल जाए. आई राइट डाउन हियर क्यूब. ओके, तो देन a b c d पे जाएंगे, x माइनस सी 1 टाइम, e अपॉन x माइनस सी होल स्क्वायर एंड f F अपॉन upon x minus x c minus cube. cube. So everybody understand case number 2, type number 2? Yes, sir. Okay. Then third is non-repeated. चलो मैं इंक चेंज कर देता हूँ.
नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। सो इफ यू हैव द फॉर्म लाइक दिस, पी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, वन टाइम, देन यहाँ पे आप बोल दो कि ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन, देयर इज ए सेकंड फैक्टर विद दैट, ओके। तो इसका कैसे करेंगे, तो सिंपली इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ तो, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2ax प्लस बी हो जाएगा। सो 2a Yes, की sir, जगह 2ax पे, plus b. यस, सो 2a की जगह पे नया कांस्टेंट लिखेंगे ax प्लस b हो गया, है ना, डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, दैट मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड के लिए अगेन आगे बढ़ना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव सेम ही होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cx प्लस d डिवाइड बाय a1 x square plus b1 x plus c1. Is it okay, everybody? Any doubt? Yes, sir. Any question in case number 3? नो डाउट। No doubt. सर एक बार वापस समझाओ ना। ओके चलो वापिस, यस, रिपीटेड। सो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे हमने ये केस किया था ना, सिमिलर ये है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 था, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है कि अगर उसका पावर यहाँ पे 1 है मीन्स एक ही बार है, तो ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस सी एक्स प्लस डी सेकंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ऐसे करके आपको सो ऑन जाना है, ओके। नाउ इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। एंड फोर्थ केस इज रिपीटेड, यही की यही चीज लेकिन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म, ओके, और फैक्टर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, p ऑफ x डिवाइड में आपको दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली जो हमने सेकंड केस में किया था वही का वही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1x प्लस b1 डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वन टाइम, ओके, प्लस a2x प्लस b2 डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ओके। अगर क्यूब होता तो a3x प्लस b3 डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। So is there any doubt, any question in the partial fraction, types of partial fraction? Anybody? नो डाउट सर। यहाँ पे नहीं है ना किसी को? Sir. Okay. हाँ, यस यस, बोलो बेटा। सर हाँ सर A2 और B2 लिया, उसकी जगह C और D ले सकते हैं हम? हाँ, ले सकते हैं ना, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। यू कैन टेक एनी नोटेशन फॉर योर कांस्टेंट, ओके। आपके नोटेशन कोई भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। J1 J2 J3 ले लो, है ना, आपके नेम से, मेरा जिमित है तो मैं J1 J2 J3 ले सकता हूँ, ओके। किसी को एक्स वाई जेड लेना है तो नहीं ले सकता है, क्यों, क्योंकि वी आर यूजिंग एक्स वाई जेड फॉर दी वेरिएबल, है ना, तो हम उसके लिए नहीं ले सकते, लेकिन कांस्टेंट के लिए जो जो यूज करते हैं वी कैन टेक इट, ओके एवरीबॉडी। सर हाँ बोलो। यस सर। सर ये जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है हाँ केस 2 में, हाँ, उसमें हमें वो न्यूमरेटर को x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होता? नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि देखो Okay. इसमें क्या होता है कि x माइनस ए, दिस इज बेसिकली लीनियर फैक्टर, है ना, इसीलिए नहीं करना पड़ता है, नॉट रिक्वायर्ड, ओके। यस सर। ओके, नाउ एनी अदर क्वेश्चन, एनीबडी? नो? नो डाउट सर। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे जो जो मैंने सिखाया वही का वही यहीं पे क्विकली गो थ्रू इट, है ना, हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते। देखो
We are given y is equal to p of x upon q of x, where p of x and q of x are polynomials in x with different degrees. So if degree of p of x less than degree of q of x, मैंने उल्टा लिखा था, degree of q of x greater than degree of p of x, दोनों ही दोनों सेम ही हुआ है ना, then only we will use this method. Okay, so this is the condition for the partial fraction. So mainly there are 4 types of partial fraction. Number 1, p of x divided by q of x is equal to px upon x minus a, x minus b, x minus c, and so on. Okay, so a1 upon x minus a plus a2 upon x minus b, a3 upon x minus c, and so on. And case 2 is the repeated linear factors, that means x minus a n times a, so you can do with the a1 upon x minus a plus a2 upon x minus a whole square plus a3 upon x minus a cube, and so on. Nth time लेना है तो an upon x minus a raised to n. Okay, everybody? Yes, sir. Okay, case 3 and case 4 we already discussed it. So p of x upon q of x इस तरीके से कि p of x divided by a1 x square plus b1 x plus c1, a2 x square plus b2 x plus c2. So you have to find out the a1 x plus a2 means ax plus b भी आप ले सकते हो, a1 x square plus b1 x plus c1 as it is, plus a3 x plus a4 divided by a2 x square plus b2 x plus c2. So this is your case number 3. उसमें क्या है, नॉन रिपीटेड नॉन लीनियर फैक्टर मीन्स हमने क्वाड्रेटिक से ले लिया है ना, यहाँ पे नॉन रिपीटेड नॉन लीनियर, जो आगे वाले केस में नहीं होगा, आगे वाले केस में है ऐसा नहीं चाहिए हमको ऐसा. ओके, देन फोर्थ केस इज q of x कैन बी फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ रिपीटेड नॉन लीनियर फैक्टर मीन्स रिपीटेशन में कि पावर एक से ज्यादा है, देन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ type 2, case 2. Okay, so a1x plus a2 divided by first time plus a3x plus a4 divided by second time. Okay, square. So I hope you all are understand about the case 1, 2, 3 and 4. Okay, I have one doubt in case 3 and 4. If the power of x case 3 and 4 is more than 2, then the same formula applies or the variation occurs. no, variation not occurs. You can extend this formula अब whatever you have the factor means यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे अगर थर्ड होता तो पर भी you can extend it प्लस करके a5x plus a6 divided by a3x square plus b3x plus c3. नहीं सर, अंदर मतलब जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है उसमें जो एक्स स्क्वायर दिया है उसकी जगह पे एक्स क्यूब होता तो सेम ऊपर लेना है डेरिवेटिव. नहीं, देखो उसमें क्या हो जाएगा, a1 x क्यूब है, ओके, प्लस b1 x स्क्वायर है, ओके, प्लस c1 x है, प्लस d1 है, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? यस सर. है ना. सो फर्स्ट फैक्टराइज दिस, आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस यू हैव द 2 or 3 ब्रैकेट. ओके, means first bracket is with the linear factor, that means x minus a something, and second is quadratic factor. yes or no? कार्डन्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा तो कुछ फाइंड कर पाएंगे ना. then go for the cases. okay, then go for the cases. ओके सर. पहले हमको क्या करना है, देखो कोई भी हमको स्टेटमेंट दिया है उसको सबसे ज्यादा फैक्टराइज कर देना, डिनोमिनेटर को जितनी बार हम फैक्टराइज कर सकते हैं उतनी बार कर देने का, दैट्स ऑल. ओके, वो हो गया. उसके बाद वी कैन अप्लाई द केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4. ओके ओके सर. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हाँ ऐसा दिया है कि x अपॉन x square minus 4. So which case will be applicable here? Case 1. Case First 1. case, sir. Actually case 1 है, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि सर मुझे थर्ड केस से जाना है, then he can do it. कर सकता है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा थर्ड केस से. क्यों? क्योंकि उन्होंने फैक्टराइजेशन, हाँ, फैक्टराइजेशन नहीं किया है. अंडरस्टैंड? फैक्टराइजेशन करने के बाद इफ यू अप्लाई देन यू विल गेट योर परफेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, यस सर. Yes sir. डन. चलो तो फिर हम आगे बढ़े. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब तक जितने भी हमने डिस्कशन किया, जितने भी मेथड स्टडी किया, वो सारे किसके लिए था?
लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। ओके, जो भी हमने किया अप टू टिल टुडे, है ना, all the methods and all the properties and all the examples are only for the Laplace transform. Okay, now we are going to discuss about the inverse Laplace transform. Means हमने Laplace transform apply कर दिया, that means हमने क्या किया, तो if you see हमने क्या किया, तो Laplace transform f of t find कर दिया, yes or no? तो इसमें क्या होता था, मैंने आपको बोला था कि टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर हो जाता है, बोला था कि नहीं? आपका जितने भी आंसर आए होंगे वो सारे एस में होंगे, यू चेक इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लाप्लास इनवर्स, दैट मींस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस हो जाएगा। मींस यू हैव द फ्रीक्वेंसी एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द टाइम। ओके, दैट मीन्स एस टू टी में जाना है, एस डोमेन में से टी डोमेन में जाना है, तो आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टैंड? Do you understand everybody? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Okay, so the definition is very simple. If Laplace transform f of t is equal to f of s, then f of t is known as the inverse Laplace transform f of s. Means यहाँ पे आपको लिख दिया है लेकिन पता नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि Laplace transform f of t is equal to, we say this is your fs, बोलते थे कि नहीं? और f बार s भी बोलते थे कभी कभी, है ना? अब क्या करना है आपको, इससे इनवर्स ऑपरेट करना है, दैट मीन्स लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। अब इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, दैट मीन्स एफ एस, कैपिटल एफ एस, और लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार एस। अब किसी के ऊपर भी ऑपरेट करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ था ना, दैट इज योर आंसर, एफ ऑफ टी। सो दिस इज नोन एज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो जितने भी आपने फॉर्मूला स्टडी किया ना वो सारी वापिस आई। देखो अब इसका हम लिस्ट बनाते हैं। चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आप गलती से भी एग्जाम में भूल गए। यस यस बोलो। लास्ट स्लाइड बताओगे सर? हाँ, एक मिनट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक मिनट, हाँ मैं लिख देता हूँ सिर्फ, फिर मैं वापस जाता हूँ। ओके, हाँ यस बोलो, क्या बोलते थे आप? यस, हाँ सर वो बोर्ड में लास्ट स्लाइड दिखाओगे? बोर्ड में? ओके, मीन्स मेरी राइटिंग वाली? यस सर। ओके, कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड, ओके। सो देखो यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने क्या बोला कि आपको उल्टा प्रोसेस करना है। तो चलो मुझे, मैं वन बाय वन पूछता जाता हूँ, आप बताते जाओ, मैं आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देता जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन? लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, वेरी गुड। तो मुझे अगर ऐसे दिया है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा? 1, वेरी गुड। ओके, तो वही की वही फॉर्मूला वापस आ गई। ओके, सो इस टाइप से आपको इनवर्स फाइंड करना है। देखो अब नेक्स्ट लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to at। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to at? 1/s minus a. 1/s minus a. So if I want to find the Laplace inverse of 1/s minus a, then my answer is e raised to at. Yes or no? Yes sir. Third formula for Laplace transform e raised to minus at. Okay, so it is very easy, 1/s plus a. So Laplace inverse of 1/s plus a is nothing but e raised to minus at। अब तो डिराइव कर सकते हो कि नहीं एवरीबॉडी? यस सर। है ना? तो Yes, आप sir. तो देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ, चलो हम नेक्स्ट लेते हैं t raised to n। क्या था t raised to n का? n factorial upon s raised to n plus 1. वेरी गुड, n फैक्टोरियल अपॉन s raised to n plus 1, और सेकंड था गामा n plus 1 डिवाइड बाय s raised to n plus 1। ये था कि नहीं? सर आपने इनवर्स लिखा तो बराबर है वो। Oh, sorry. No, not it is correct. Okay, now it is correct. Okay, वो तो लाप्लास ही था ना। अब
we are now we are going to find the Laplace inverse. Okay, अब यहाँ पे देखो थोड़ा वेरिएशन यहाँ पे, everybody look at here. जब भी ऐसा आता है तो जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इनवर्स में डिवीजन में डाल देंगे. सुनो, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? सर फिर से रिपीट करेंगे आप? फिर से रिपीट करता हूँ. यहाँ पे देखो ये अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट करो तो इसमें कांस्टेंट क्या है, एस के अलावा क्या बाकी बचता है? n फैक्टोरियल. तो उसको मूव करना पड़ेगा मुझे, यस सर. है ना. तो यहाँ पे n फैक्टोरियल यहाँ पे न्यूमेरेटर में, तो यहाँ क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे n फैक्टोरियल नीचे चला गया और यहाँ पे गामा n+1 ऊपर है तो यहाँ पे साइड में चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है. अब यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ s का टर्म ही यहाँ पे लेना है. सो 1/s⁻n+1 ही यहाँ ब्रैकेट में आएगा. सो 1/s⁻n+1 इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1 क्या हो जाएगा, t⁻n फैक्टोरियल और t⁻n/Γ(n+1). इज इट ओके एवरीबॉडी? हाँ यस सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में n p/q होगा ना तब गामा वाला फॉर्म आएगा, तो इसमें सर ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं इसमें ओके कुछ नहीं. यहाँ पे आपको n जो दिया है n+1 अगर आपका क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3/2 हुआ तो यू कैन गो विद द गामा. सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर. ओके सर. ओके, दैट मीन्स आई वांट टू से दिस वन. देखो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻³ तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये जाएंगे तो 3/2 फैक्टोरियल तो मिलेगा नहीं. इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से n आइडेंटिफाई करो, n. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो n+1 इज इक्वल टू 3/2 हुआ ना हमारे केस में, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना. 1/2. यस सर. तो यहाँ पे t⁻² डिवाइड बाय 1/2 फैक्टोरियल तो मिलेगा नहीं, इसलिए इसको यूज करना पड़ेगा. सो गामा 1/2 एंड गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई, √π, है ना. हाँ सर, रूट पाई. तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना. ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. Yes, sir. सो दिस इज योर फोर्थ. चलो फिफ्थ मुझे साइन वाला बताओ. चलो साइन वाला कैसे करेंगे बताओ. चलो फिफ्थ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या होता था, a/s² + a². s² + a². very good. Okay, so if I operate the Laplace inverse of 1/s² + a², okay, मैंने ऊपर 1 ही ले लिया है, then what will be our answer, sin 80/a. sin 80/a. Sin of, हाँ. Yes, very good. Similarly we can find for the cos 80. So Laplace transform of cos 80 हमारे पास था s/s² + a². सो लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब इसमें से मुझे कुछ नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा s में ही है. सो आई कंसिडर होल थिंग्स हियर. सो s/s² + a² इज इक्वल टू सिंपली cos 80. डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? 6 नंबर फॉर्मूला यस सर. है ना. चलो सेवंथ बताओ मुझे, सेवंथ क्या होगा. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 के बारे में देखते हैं. चलो तो क्या होता था वो, a/s² - a² हो जाता था. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² - a². सो व्हाट वी हैव, साइन हाइपरबोलिक 80 डिवाइड बाय a. ओके, Yes, sir. then Laplace transform Yes. cos hyperbolic 80 is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, s/s². यस, सो लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, s/s² - a² इक्वल टू cos hyperbolic 80. ओके एवरीबॉडी? Yes sir. तो देखो आगे की सारी फॉर्मूला वही की वही है. देखो 1 t⁻n फैक्टोरियल, है ना, 1/s - a, 1/s + a/s² + a². देखो यहाँ पे a/s² + a² किया है तो फिर यहाँ पे a नहीं लिखेंगे. ओके, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे a आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना. यस सर. देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 1 करके भी लिखा है तो 1/a नीचे चला जाएगा.
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स हो जाएगा cos at। ये सारे हमने कर दिया, ओके डन, cos तक कर दिया, ओके। अब ये देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पे देखो, चलो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग था, वो चेंज ऑफ स्केल नहीं था, फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या था, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू at इनटू f ऑफ t, तो हम क्या करते थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t में s की जगह पे क्या रिप्लेस करते थे, s माइनस ए, यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. इसको हम लिखते थे f ऑफ s माइनस ए सिंबॉलिकली। सो उससे मुझे लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, तो सिंपली लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1 अपॉन, नॉट 1 अपॉन, सॉरी, हाँ यस, f ऑफ s माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट में पड़ा है वो पूरा e रेज टू at इंटू एफ ऑफ टी। ओके एवरीबडी, Yes, sir. ओके दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो मुझे ऐसा फाइंड करने के लिए दिया है कि 1 अपॉन एस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16, चलो। सो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा सोचो कि s माइनस 2 भूल जाओ, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 किसका होगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 क्या होगा उसका आंसर? Sin hyperbolic at नहीं, हाइपरबोलिक नहीं आएगा ना, हाइपरबोलिक में तो बीच में माइनस आता है। 80 sin 48 sin 40 40 साइन 40, ओके। सो साइन 40 हो गया। अब ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग है, s की जगह पे s माइनस 2, तो आपको e के पावर में क्या रख देना है, सिर्फ 2t, ओके अंडरस्टैंड? सर डिवाइड बाय 4 भी आएगा। yes, sir. हाँ डिवाइड बाय 4 Yes, sir, आएगा, divide क्यों by नहीं 4. आएगा, डिवाइड बाय 4 आएगा ना, वो तो श्योर आएगा, क्योंकि साइन 40 अपॉन 4 इसका है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 का, इसलिए साइन 40 अपॉन 4 एंड ई रेज टू 2t फर्स्ट शिफ्टिंग से आ गया। इज इट ओके? पता चल रहा है ऑनलाइन सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग से पूरी फिर से बहुत सारी फॉर्मूला यहाँ पे देखो डेवलप किया गया है ना, तो आप देख लेंगे वही का वही है, सिर्फ साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक ऐसे ही किया है। ओके डन, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Okay, so is there any doubt, any question in today's session? सर वो जो सम में ज्यादा यूज होती है वो गामा की वैल्यू लिखवा दो ना सर आप। हाँ, गामा की वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा यूज होता है ना, तो एक तो गामा 1/2 ही है, सबसे ज़्यादा आपको गामा 1/2 यूज होगी। अगर आपका गामा 5/2 है ना, तो पर भी उसको हम 1/2 में कन्वर्ट कर देते थे। कैसे करते थे पता है किसी को? 3/2 इंटू गामा 1/2 प्लस, हाँ सर, हाँ 1/2 प्लस। सो यस, उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 1/2 इसे करते थे ना, तो उसका आंसर फिर हम लेके आते थे 3/4 इंटू रूट पाई। इज इट ओके? यस सर। है ना, तो इसी हिसाब से आप सिर्फ ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, है ना। बाकी तो उसका रिडक्शन फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म लेके जाना है, बस दूसरा कुछ नहीं है। और यहाँ पे इसी जगह पे गामा 3/4 दिया है, तो वी कैन नॉट फाइंड दिस वन, है ना, क्योंकि इसमें से गामा 1/2 में तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए उसको एज इट इज रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके यानी सर एग्जाम में सर गामा का 3/4 और ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ गया तो हम गामा के फॉर्म में रखेंगे तो चलेगा ना? चलेगा, सिर्फ गामा 1/2 में अगर आप ट्रांसफर कर सकते हो देन यू कैन कन्वर्ट इट, अदरवाइज यू कैन पुट इट एज इट इज। ओके ओके सर। और जिसका वैल्यू मिल रहा होगा उसी का आपको फाइंड करने के लिए बोला होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड इट, सो वी कैन नॉट आस्क इट इन योर एग्जामिनेशन। ओके डन, अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। लेक्चर खत्म होने से पहले सर एक बात करनी थी आपसे।
हाँ बोलो बोलो मनन, बोलो बोलो बोलो। सर अब D2D के लिए सर हमारे लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नया है। अब मुझे फ्रैक्शन में थोड़ा समझ आ गया है। हाँ अभी हाँ ये आपने फॉर्मूला सिखाया तो थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ, बट सर हमें पहले से PDF देखना पड़ेगा, तो हमारे लिए अटेंडेंस जरूरी है, या अगर हम स्किप करें और YouTube पे अगर और लेक्चर्स देखना स्टार्ट करें तो चलेगा सर? हाँ, अगर आप YouTube पे देख लेंगे तो चलेगा, क्योंकि योर अटेंडेंस विल बी काउंटेड बाय व्हेन एवर यू ज्वाइन। ओके, मीन्स आप जहाँ से ज्वाइन किए हैं वहाँ से, मीन्स फॉर एग्जांपल आपने 4th से किया है तो योर अटेंडेंस विल बी काउंट फ्रॉम 4th अगस्त। ओके, उसी हिसाब से होता है। पहले से वाला तो थोड़ी वापस ला सकते हैं, आप ज्वाइन ही नहीं किए हो तो कहाँ से होगा मनन, है ना? नहीं मतलब वो नहीं सर, मतलब हमारे यहाँ क्या होता था डिप्लोमा में कि अगर हम अटेंडेंस हमारी कम है तो वो लोग डिटेन विटेन कर देते थे, थोड़ी हाँ सी भी कम हुई थी